Hello and welcome. In the last class, we were done with Muhammad bin Tughlaq and his reign, and today we are going to start Firoz Shah Tughlaq. पहला टॉपिक है द इलेक्टेड सुल्तान. Muhammad bin Tughlaq left no male issue nor did nominate a successor. His sudden death in the army camp in the vicinity of Thatta therefore created a serious situation. The soldier decamped immediately and marched towards Delhi without leader, rule, or route, in great disorder. I'm so sorry. No one heeded or listened to what anyone said, but continued the march like careless caravans. The Mongol mercenaries who had been hired by the Sultan Muhammad bin Tughlaq to suppress the rebellion assailed the royal army in front with the object of acquiring booty, while the rebels of Thatta attacked the baggage train in the rear. Thousands of villagers who had earlier been pressed into the service of the army took to flight. They also joined hand with the rebels and began to pillage various lots of baggage on the right and left of the army. It spread consternation among the imperialists who stood in danger of being totally annihilated. They numbered, according to Burney, 2 lakh human souls, including, of course, the families, slaves, and non combatants. In the hour of crisis, sheikhs, nobles, ulema of imperial camp held an emergency call and with near unanimity elected Firoz Tughlaq, son of Sipah Salah Razab, an elderly cousin of Muhammad bin Tughlaq, to be the Sultan. Firoz Tughlaq accepted the offer and after some hesitation was formally coronated in a simple ceremony held somewhere on the bank of the Indus, which they had halted for the night before. The incident took place on 23 March 1351, 3 days after the death of Muhammad bin Tughlaq. Firoz Tughlaq swung into action immediately and made effective arrangement for the protection of the imperial force. He conducted them safely to the capital via Multan and Dipalpur. तो क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उनके क्योंकि कोई सक्सेसर नहीं थे, कोई किसी को उन्होंने अपने बाद बना नहीं रखा था, मतलब हिज एयर कोई नहीं थे वैसे, तो आर्मी जो है वो मार्च कर रही थी, रॉयल आर्मी, बिना किसी लीडर के, बिना किसी रूल के, बिना किसी रूट के, पूरा डिज़ॉर्डर. और आर्मी को आगे पीछे से, अगल बगल से, हर जगह से लोग जो है वो लूट रहे हैं. मंगोल जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए रखा था, वो आर्मी को फ्रंट से असेल कर रहे हैं वॉर बूटी एक्वायर करने के लिए, जबकि थट्टा के रिबेल्स जो हैं वो रियर से, बैक से आर्मी को जो है परेशान कर रहे हैं. बहुत सारे विलेजर्स ने भी ज्वाइन कर लिया और वो लेफ़्ट और राइट से जो है क्या कर रहे हैं, बैगेज लेने की कोशिश कर रहे हैं. इससे क्या हो गया, इम्पीरियलिस्ट को बड़ा डर लग गया कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए. 2 लाख, बर्नी के हिसाब से 2 लाख लोग थे. उस 2 लाख लोगों में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे गुलाम और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आर्मी का पार्ट भी नहीं थे. ऐसे में शेख, नोबेल और उलेमा ने क्या किया कि ये लोग जो है साथ मिल कर के इन्होंने जो है फ़िरोज़ तुगलक को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े भाई थे, चचेरे भाई, उनको जो है नया सुल्तान बना दिया. इंदस के बैंक पे फ़िरोज़ तुगलक का कोरोनेशन हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के 3 दिनों के बाद. और मुल्तान से दीपालपुर होते हुए दिल्ली की तरफ फ़िरोज़ शाह जो है इंपीरियल आर्मी को सेफली पहुंचा पाए. Meanwhile, Khwaja-e-Jahan, the vizier of Muhammad bin Tughlaq, who held charge of central government in Delhi, had installed an infant on the throne and declared him to be the son and successor of deceased Sultan. He, however, did not receive wide support for his cause and offered submission to Firoz Shah Tughlaq near Hansi. Firoz Tughlaq entered Delhi with imperial army and coronated with great pomp and show on 25 August 1351. He was about 46 at that time. His succession, though bloodless, did not go unchallenged. Khudavandzada was apparently reconciled to the loss of political ascendancy of for her family. Nevertheless, she harbored a feeling of ill will towards him and after some time hatched a conspiracy against the Sultan.
Her son, Dawar Malik, was, however, a party to it. His timely warning to Sultan saved the latter's life. Similarly, two half-brothers of Firoz Tughlaq from the Muslim wives of Razav also disputed his claim to the throne and were de-recognized by the imperial court. तो ख्वाजा जहान जो कि वज़ीर थे, उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है एक छोटे से बच्चे को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, एक इन्फेंट को, और ख़ुद रीजेंट बन गए थे। लेकिन फिर जब वापस आए और आर्मी ने फ़िरोज़ तुगलक को सपोर्ट किया हुआ था, तो उन्होंने जो है हंसी के पास उन्होंने भी तुगलक को सबमिशन कर दिया। तुगलक जो है 25 अगस्त 1351 को फ़िरोज़ तुगलक ने जो है अपना राज्याभिषेक किया, बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ। वो 46 साल के थे उस समय। उनका राजा बनना या सुल्तान बनना ब्लडलेस था, क्योंकि उनको किसी को मारना नहीं पड़ा। पर खुदावंदाज़ा जो है, उन्होंने जो है रिकनसाइल किया ये जो पॉलिटिकल एसिडेंसी, उनके फैमिली का जो लॉस हुआ, जो उस बच्चे को हटा दिया गया, और फिर ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने फिर उसके बाद फिर क्या हो गया कि वो जो है वो काफ़ी गुस्सा थी फ़िरोज़ तुगलक से, और उनके बेटे दावर मलिक के साथ मिलकर के वो प्लान कर रही थी कि फ़िरोज़ तुगलक को मार देना है। लेकिन दावर मलिक जो है, उन्होंने मेन टाइम पर वो इस बात से साइड हट गए, और उन्होंने जो है फ़िरोज़ तुगलक को जो है वार्निंग दे दिया कि उनकी जान जा सकती है, और फ़िरोज़ तुगलक बार बार बचे। फ़िरोज़ तुगलक के दो सौतेले भाई जो कि उन्होंने भी जो है फ़िरोज़ तुगलक को सपोर्ट नहीं किया इम्पीरियल कोर्ट में, इम्पीरियल थ्रोन पर, और फिर बाद में उनको भी जो है इम्पीरियल कोर्ट से रिकॉग्नाइज कर दिया गया। फ़िरोज़ तुगलक के पिता राज़ब जो है वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक के पिता राज़ब जो है वो घियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, जबकि उनकी माँ भट्टी जो है वो एक राजपूत लेडी थी, जिन्होंने राज़ब से शादी की थी अपने पिता के स्टेट को बचाने के लिए। उनके पिता भट्टी के पिता कौन थे? रनमल ऑफ अबोहर, उनको बचाने के लिए। फ़िरोज़ तुगलक जो है वो एकमात्र बेटे थे भट्टी और राज़ब के साथ में। राज़ब जो है उनकी डेथ हो गई जब फ़िरोज़ मुश्किल से 6 या 7 वर्ष के थे, और फिर फ़िरोज़ को जो है घियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे की तरह पाला। फ़िरोज़ एक यंग बच्चा ही था, 14 साल का, जब घियासुद्दीन जो है सुल्तान बने, और फ़िरोज़ को उन्होंने जो है डेप्यूटी टू लॉर्ड चेम्बरमैन या नायाब अमीर हाजिब बना दिया, नायाब बरबक के उपाधि के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फ़िरोज़ से उनका काफ़ी अफेक्शन था, और वो उनको रॉयल कंपनी में रखते थे फ़िरोज़ तुगलक को। 1345 में सुल्तान जो है went out of the capital for suppression of revolt in Malwa, Gujarat and Daulatabad. He constituted a royal council to run the administration. It comprised Kabir Khan, Khwaja Jahan and Firoz. तो जब मोहम्मद बिन तुगलक 1345 में रिवोल्ट भी शांत करने गए थे, तो उन्होंने जो है एक रॉयल काउंसिल बनाया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। उसमें कबीर खान, ख्वाजा जहान और फ़िरोज़ भी थे। कबीर खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जब जिंदा ही थे तभी उनकी डेथ हो गई, और ख्वाजा जहान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। कबीर खान had died during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक, and with execution of ख्वाजा जहान, फ़िरोज़ एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थे सुल्तान के नज़र में भी। माना जाता है कि सुल्तान ने, क्योंकि उनको देखने के लिए रखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोगों को लगा कि चलो इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। Most probably, Muhammad bin Tughlaq desired Firoz to succeed him to the throne, though his formal nomination as the heir apparent could not be effected owing to the sudden collapse. माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक भी अगर किसी को नॉमिनेट करते तो वो फ़िरोज़ को ही नॉमिनेट करते, बट अचानक से सब कुछ कोलैप्स कर गया, तो उन्होंने कभी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया फॉर्मली। फ़िरोज़ तुगलक जो है वो एक यूज़र्पर नहीं थे, उन्होंने जो है थ्रोन को लिया नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, सोवरेनिटी वॉज नॉट बेस्ड अपॉन डिसेंट, दो द सन्स राइट टू रूल वॉज रिकग्नाइज्ड। इस्लामिक लॉ के हिसाब से सोवरेनिटी मतलब राजा कौन बनेगा वो इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक राजा का बेटा है, पर इस्लामिक लॉ में बेटे के हक को जो है वो फिर भी रिकग्नाइज किया जाता था।
और ये कॉम्पिटेंट तभी होता था जब उस बेटे के रेन को जो है अप्रूवल मिलती थी नोबिलिटी और उलेमा की। Nomination of heir apparent to the throne by the reigning monarch also received due consideration through Razia's nomination by his illustrious father Iltutmish was rejected by the 40 slave generals on the ground that she was a woman. कभी कभी तो राजा जो खुद से भी नॉमिनेट कर देते थे उसको भी लोग रिजेक्ट कर देते थे, जैसे कि इल्तुतमिश के नॉमिनेट करने के बाद भी रज़िया को जो है दल चालीसा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि रज़िया एक स्त्री थी। Therefore, there was nothing like inherited right of succession. तो इंडो टर्किश सुल्तान जो दिल्ली के थे उनमें कुछ इनहेरिटेड राइट नहीं था कि इसको हक है कि ये सक्सीड करे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अदर पर्सन्स भी थे जिनका फिरोज तुगलक से बेटर क्लेम था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, पर उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया था एम्पायर मेकर्स के द्वारा। फिरोज को ही इलेक्ट किया गया था और कॉम्पिटेंट माना गया था उनके द्वारा। अब इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि फ़िरोज़ की एज एडवांस थी, वो एक्सपीरियंस इंसान थे, 46 साल के थे और लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था उनको, है ना। बट इसका एक और कारण है, फ्रॉम अमंग द किन्समैन ऑफ लेट सुल्तान ही हैपन टू बी मोर प्रोमिनेंट एज अ डिवोटेड मुसलमान ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर हु एन्जॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ नोबिलिटी एंड उलेमा। जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक के रिलेटिव थे उसमें से एक फ़िरोज़ ही थे जो कि काफ़ी, उसमें फ़िरोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा चरित्रवान माने जाते थे और एकदम डिवाउटेड मुस्लिम थे। मतलब उन्होंने जो है इस्लाम को बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व किया हुआ था, इसलिए नोबिलिटी और उलेमा उनके साथ थी। फ़िरोज़ तुगलक जो है वो एक डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर नहीं थे। उनकी माँ जो है वो हिंदू थी फेथ से और शादी से पहले। Even these shortcomings did not weigh with the nobility and the ulema when they pronounced him fit for the sovereign. Of course, this was abnormal decision taken by them to suit the exigency of the situation which threw up Firoz Tughlaq into prominence. His succession to the throne was based on the principle of the survival of the fittest in a critical situation. It goes to the credit of Firoz Tughlaq that he rose to the occasion, proved his worth as the savior of the imperial camp, and justified the confidence reposed in him by the grandees of the empire. Above all, it was his good fortune that he happened to be in imperial camp at the hour of grave crisis. But for his presence there, his election as sovereign would have been a remote probability. Similarly, he proved to be an exceptionally lucky man in having escaped the hands of assassins at the place of Khudavand-Zada in Delhi soon after his accession to the throne. Firoz Tughlaq strengthened his legal position as the rightful successor of Muhammad bin Tughlaq by obtaining an investiture from the Khalifa and assumed the title of Nail-e-Amir ul-Momnin. He also inscribed the Khalifa's name on the coin. फ़िरोज़ तुगलक जो है, ये सारी तो बातें हो गई। फ़िरोज़ तुगलक को जो है उनकी माँ जो है हिंदू थी। फ़िरोज़ इतने ज़्यादा बेटर थे भी नहीं आर्मी में, लेकिन फिर भी जो है एम्पायर के गार्डियंस ने उनको क्या कहा कि नहीं ये तो फिट है। वो एक बात थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, है ना। फ़िरोज़ जो है बहुत सारी चीज़ों ने फ़िरोज़ को साथ दिया, जैसे कि इम्पीरियल कैंप में जब मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहे और जब वो लोग डिसाइड कर रहे थे कौन बनेगा, तभी फ़िरोज़ का वहाँ होना, या फिर फ़िरोज़ का जो है फ़िरोज़ का खुद को लकी साबित करना जब वो खुदावंद-ज़ादा के अटैक से बच जाते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों की वजह से और फाइनली फ़िरोज़ ने जो है वो खलीफा से भी क्या किया, खलीफा से भी जो है अपना सुल्तान बने रहने का परमिशन ले लिया। और खलीफा से परमिशन मिलना एक लेजिटिमेसी थी। उन्होंने अपने कॉइन्स में, अपने सिक्कों में खलीफा के भी नेम को दर्शाया। अब फ़िरोज़ तुगलक के रूल के बारे में पढ़ते हैं। फ़िरोज़ तुगलक enjoyed a long reign of 37 years. The first 2 decades of his rule was marked by peace and tranquility,
and a welcome relief to the subject from the political turmoils and oppressive state policy of the previous regime. Being a man of peace, he took great interest in solving the domestic problems of the day and utilized the resources of the state for public welfare activities. He did not aspire to reconquer all the lost dominance of the empire, nor was he successful when he attempted to do so. A poor general and incompetent military organizer, Firoz Tughlaq did not pay proper attention towards the maintenance of strong, well equipped, and efficient army, which was the backbone of the Sultanate. Even on the home front, he proved to be a poor administrator who failed to utilize his long era of peace for developing institutions of civil administration on healthy lines so as to ensure stability, credibility of the central government and administration. Evil effects of his poor administration, weak foreign policy, defective military organization began to show themselves after यहाँ पर ना गलती से 1772 लिख गया है, वो दैट विल बी 1372. सो यू कैन करेक्ट दैट. एंड लास्ट 17 ईयर्स ऑफ हिज रेन, तो 1372 से जो है ना इनके जो भी इन्होंने सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया था वो दिखने लग गया था और फिर धीरे धीरे जो है डिसइंटीग्रेशन होने लगा. फिरोज़ तुगलक जो है उनका 37 ईयर्स काफ़ी पीस भरा रहा, लेकिन उन्होंने पब्लिक वेलफेयर की बहुत काम किया, लेकिन वो जो है वो ना ही उन्होंने एम्पायर बढ़ाने की करने की कोशिश की तो सक्सेसफुल भी नहीं रहे, ना ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट किया, ना ही कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया, और 1372 से जो है इसका बुरा परिणाम दिखना भी शुरू हो गया. ये सिग्निफिकेंट है हमारे लिए ये जानना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है हैड given a shattering blow to the Sultanate of Delhi as an empire. फिरोज़ तुगलक inherited the Sultanate as a small kingdom. हमने देखा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के एंड में, उनके रेन के एंड में जो है हर तरफ से झगड़ा हो रहा है, हर तरफ लोग लड़ रहे हैं. फिरोज़ तुगलक जो है उन्होंने जो है ये सल्तनत को इनहेरिट किया एक स्मॉल किंगडम की तरह. सल्तनत एक काफ़ी स्मॉल किंगडम थी जब फिरोज़ तुगलक ने उनको इस सल्तनत को इनहेरिट किया, और यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्लाइन ही करती जा रही थी. तो ऐसा कुछ था. अभी खाने जहान मकबूल प्राइम मिनिस्टर. नाउ ऑन द डे ऑफ हिज कोरोनेशन फिरोज़ तुगलक अपॉइंटेड मलिक मकबूल his prime minister with the title Khane Jahan. He was brilliant administrator who held this exalted office till his death in 1370. तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे खाने जहान मकबूल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने. ये ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे. एज मच ऑफ द क्रेडिट फॉर द सक्सेसफुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग दिस पीरियड गोज टू खाने जहान. इन ब्रीफ रिव्यू ऑफ हिज करियर इज वर्दी नोट. खाने जहान वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम तेलंगाना whose original name was Kattu or Kannu. During his early life, he was attached to the court of last Hindu ruler Pratap Rudra Dev II of Telangana. After the annexation of Telangana by Jona Khan, Kannu was brought a captive to Delhi and he embraced Islam and was given the name of Makbul. When Muhammad bin Tughlaq ascended the throne, he perceived in him many marks of intelligence and made him Nayab Wazir for the metropolis of Delhi. Thereafter his promotion to the high offices was rapid. He received the title of Qawamul Mulk and governorship of Multan. He was Nayab Wazir and of the empire during the last years of Muhammad bin Tughlaq reign. Khwaja-e-Jahan held the office of prime minister. He managed the administrative affair with the competence, issued many rules, regulations to restore health of the revenue ministry, and extended his control over the provincial officers with an iron hand. Khwaja-e-Jahan depended heavily upon him for smooth running of the administration. Makbul did not like, however, the action of prime minister on the issue of succession to the throne after the death of Muhammad bin Tughlaq. When Firoz Tughlaq approached the capital with imperial army, Makbul deserted Khwaja-e-Jahan and joined the imperial camp. He helped Firoz Tughlaq to get possession of the city. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
कि ख्वाजा जहान जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहे फ़िरोज़ तुगलक के अच्छे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ख्वाजा जहान जो है ये एक ब्राह्मण है तेलंगाना से, और इनका असली नाम जो है कन्नू या कट्टू था। और ये हिंदू रूलर रुद्र प्रताप देव जो तेलंगाना के रूलर थे, रुद्र प्रताप देव टू, उनके कोर्ट में ये जो है अटेंडी थे। और जब तेलंगाना को जौना खान ने अनेक्स कर लिया या मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो कन्नू जो है उनको दिल्ली बंदी बनाकर लाया गया, और फिर जो है उन्होंने जो है इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और वो मकबूल बन गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है थ्रोन पर आए तो उन्होंने जो है मकबूल में देखा कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसको नायब वजीर बना दिया दिल्ली का। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हायर ऑफिसेस पे जाने लगे। पहले उनको कवामुल मुल्क का टाइटल मिला और फिर गवर्नरशिप मिली मुल्तान की। फिर वो जो है नायब वज़ीर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एम्पायर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। जब ख्वाजा जहान प्राइम मिनिस्टर थे तो मकबूल जो हैं वो क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ख्वाजा जहान जो है उन्होंने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वैसे निभाया, तो वो जो है मैनेज कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को कॉम्पिटेंस के साथ। तो मकबूल जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही थी और वो जो है प्रोविंशियल ऑफिसर्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे। ख्वाजा जहान जो है वो मकबूल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए। मकबूल जो है पर उनको जो है वो ख्वाजा जहान के कुछ एक्शंस नहीं पसंद थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ होने के बाद ख्वाजा जहान का एक्सेशन टू द थ्रोन, ये उनको नहीं पसंद, सक्सेशन टू द थ्रोन नहीं पसंद आया। जब फ़िरोज़ तुगलक कैपिटल में आ रहे थे तो इंपीरियल आर्मी के साथ, तो मकबूल ने जो है ख्वाजा जहान को छोड़ दिया और क्या किया, इंपीरियल कैंप को ज्वाइन कर लिया और फ़िरोज़ तुगलक को जो है दिल्ली पर राज करने में मदद किया। इसलिए मकबूल को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और मकबूल को ही टाइटल दिया गया खाने जहान का। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा जहान और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मकबूल। लेकिन जब फ़िरोज़ शाह तुगलक आए तो मकबूल कौन बन गए, मकबूल बन गए प्राइम मिनिस्टर। और सारे नोबेल्स और उलेमा ने जो है इनको जो है हेल्ड बाय नोबेल्स एंड उलेमा। ही वॉज नॉट वन ऑफ द किंग मेकर्स ऑफ द इम्पीरियल कैंप हु हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग फ़िरोज़ तुगलक टू द थ्रोन। मकबूल रिचली डिजर्व्ड दिस एग्जाल्टेड ऑफिस ऑन मेरिट इंडीड। तो मकबूल ने एक्चुअली फ़िरोज़ तुगलक को सुल्तान बनने में मदद नहीं किया था, वो कोई किंग मेकर नहीं थे। फिर उनको इतनी बड़ी ऑफिस क्यों मिली, बस मेरिट के बेसिस पर, क्योंकि उनको इस ऑफिस के लिए ही वॉज डिज़र्विंग ऑन हिज मेरिट। सुल्तान जो है उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया मकबूल पर या फिर खाने जहान पर, और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस में उन्होंने काम किया। जब भी कैपिटल से बाहर जाते थे हंटिंग या मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए, तो खाने जहान जो है डेप्यूटाइज्ड फॉर हिम एंड कैरीड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। खाने जहान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे से कैरी करते थे। खाने जहान वॉज लिबरली प्रोवाइडेड बाय द सुल्तान एंड ही लिटरली रोल्ड इन वेल्थ। His salary was 13 lakh tankas per annum. His abundant wealth raised him above all corruption and, instead of making him arrogant and power drunk, molded him into a magnificent, lovable and dignified personality. He enjoyed all royal privileges and luxury of the princely order. A fief observers that notwithstanding his onerous official duties, Khan-e-Jahan was much devoted to the pleasures of the harem and sought eagerly for the pretty handmaids. He is said to have 2,000 women of various nationalities and races in his harem, and produced dozens of children, all of whom received liberal privy purses. Khan-e-Jahan was more than 80 at the time of his death, which took place during the 18 years reign of Firoz Shah. तो क्या होता है, अफीफ राइट्स ऑन हिज डेथ, all Delhi went into mourning and crowded the mosque and tomb. The Sultan was greatly affected at his death and wept bitterly, and he resolved in his mind that he would never more ride forth on any great enterprise.
After the death of Khane Jahan Makbul, his son Juna Khan was promoted wazir and granted the title of his illustrious father by Sultan Firoz Shah Tughlaq. Khane Jahan Juna Khan was no match to his father's caliber. Nevertheless, he acted as the Prime Minister of Firoz Tughlaq with devotion for the next 20 years, popularly known as Khane Jahan, son of Khane Jahan. No wonder Khane Jahan Makbul and his family made a great contribution towards the initial administrative achievement of Sultan Firoz Tughlaq. Peace prosperity of his reign during the first 2 decades was unintelligible unless the service rendered by Khane Jahan Makbul to the throne was taken into consideration. तो फिरोज शाह तुगलक ने जो भी पीस मेंटेन किया वो खाने जहान की वजह से मेंटेन किया, ठीक है। और खाने जहान जो है उनको अच्छी खासी सैलरी देते थे, 13 लाख टंका सालाना मिलता था उनको। पर इतना पैसा मिलने के बाद खाने जहान में करप्शन नहीं आया, खाने जहान करप्शन से ऊपर उठ गए क्योंकि उनको ऑलरेडी इतनी सैलरी मिल रही है। वो घमंडी या पावर ड्रंक नहीं हुए, बट वो एक लवेबल और डिग्निफाइड पर्सनैलिटी बन के निकले। उन्होंने रॉयल काम को बड़े अच्छे से किया और बड़े ही सही तरीके से किया। अफीफ़ कहते हैं कि ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ तो इन्होंने बड़े अच्छे से निभाया, पर खाने जहान जो है वो उनको सेंशुअल प्लेजर्स में भी जो है वो काफ़ी रुचि थी और उनके हरम में 2000 औरतें थी और उनके लगभग 1 दर्जन बच्चे थे। खाने जहान जो है वो 80 साल के थे जब उनका डेथ हुआ और उनके डेथ में पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो रो रहा था। इवन सुल्तान फिरोज़ तुगलक भी काफ़ी रो रहे थे। और फिर खाने जहान के बाद खाने जहान के बड़े बेटे जूना खान को जो है सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, बट ये अपने पिता के कैलिबर इनमें नहीं थी। इनमें ये उनके तरह एफिशिएंट नहीं कर पा रहे थे काम, बट फिर भी जो है इनको जो है ड्यूटी में रख लिया गया था। आगे डोमेस्टिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। फिरोज शाह तुगलक जो है वो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा फेमस हैं, तो इनकी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ इज़ अ मस्ट, वी हैव टू सी इट। Firoz Tughlaq inherited a truncated empire inflicted with widespread revolt, disorder. The civil services had been crippled and royal treasury was empty. The people in a general had been suffering and simmering and discontent under the oppressive regime of his predecessor. Firoz Tughlaq immediate task was to pacify the subject and restore law and order. He handled the situation tactfully and initiated a state policy on a conciliatory note. Khwaja Fakhr Shadi, the Accountant General of the Finance Ministry, had faithfully maintained the registers of those who had advanced loan by Muhammad bin Tughlaq to the tune of 2 crore of rupees for the purpose of restoring land, villages and quarters, and had fallen to ruin during the famine. He also presented Sultan detailed list of those nobles and citizens of Delhi who had received bounties from ख्वाजा-ए-जहान, खाने जहान नहीं, ख्वाजा-ए-जहान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के प्राइम मिनिस्टर, as a price for extending support to his puppet Sultan. On the advice of his prime minister Khane Jahan Makbul, the Sultan wrote off all the debts of the agriculturists and others. He did not take any action against those who collaborated with Khwaja-e-Jahan and nor asked them to return the wealth. The record of debt and list of collaborators were brought in open court and actually thrown in water and destroyed. To the great relief of people, Firoz Tughlaq traced the victims of Muhammad bin Tughlaq's tyranny and relieved their distress. He obtained deeds of satisfaction from them and which were buried in the tomb of the deceased sultan, apparently to ensure peace to the departed soul and help it on the day of judgment. This action of Firoz Tughlaq, though based on blind religious conviction, proved very helpful to him in winning the confidence and support of the masses. In a way, Sultan recounted the oppressive deeds of his predecessor and made amends for them. तो फिरोज़ तुगलक का सबसे पहला काम था कि हर जगह लोग बगावत कर रहे हैं, मतलब लोग दुखी हैं, तो लोगों को पेसिफाई करना। तो ख्वाजा
तो ख्वाजा जहान ने जिनको दिया हुआ था पैसे, जब सुल्तान मर गए थे तो फिर उन्होंने जो है एक इन्फेंट को सुल्तान बना दिया था, है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई तो कुछ लोगों को पैसे भी दिए थे एक पपेट सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए, तो उन लोगों को इन्होंने माफ़ कर दिया, तो वो पेसिफाई हो गए। बहुत सारे लगभग 2 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को उधार दिए गए थे स्टेट की तरफ से, वो सारा माफ़ कर दिया, है ना। और फिर किसी से कुछ नहीं लिया, और खाने जहान की और फिर उसके बाद खाने जहान के एडवाइस पर उन्होंने जो है एग्रीकल्चरलिस्ट और बाकी के लोन्स भी माफ़ कर दिए। और क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो कब्र थी उसमें बस क्या कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र में जो है एक डीड ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है सबका डाल दिया। डीड्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हर उस इंसान का जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्चुअली उधार दिया हुआ था, वो डीड ऑफ सेटिस्फैक्शन लिया और मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र में डाल दिया, ताकि जिस दिन जजमेंट हो, मतलब इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि एक दिन होगा जब सभी का जजमेंट करेंगे अल्लाह, तो जब डे ऑफ जजमेंट हो तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उस दिन पीस मिले, तो इसलिए उसमें जो है डाल दिया गया था। ये एक अंधविश्वास या फिर ब्लाइंड रिलीजियस कन्विक्शन था, स्टेप था, लेकिन इससे जो है मासेस ने सुल्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि सारे कर्ज माफ़ कर दिए लोग, और चाहते क्या थे। फिरोज़ तुगलक रिवाइज्ड पीनल कोड बाय सॉफ्टनिंग द पनिशमेंट। फिरोज़ तुगलक ने जो है पनिशमेंट को ईजी कर दिया। Brutal punishment based on physical torture and amputation of organs were abolished. The judicial set was overhauled and even-handed justice administered to all. Sultan increased the salaries of the civil servants and the army. By way of innovation, he ordered that instead of mentioning the name of reigning sovereign alone, the name of all the important sultans of Delhi be referred टू इन फ्राइडे खुतबा रेड एट जामा मस्जिद ऑफ द कैपिटल। तो क्या कहा फिरोज़ तुगलक ने, क्या किया कि कैपिटल टॉर्चर को कम कर दिया। लोगों के पहले ऑर्गन्स काट दिए जाते थे, है ना, वो बंद किया, फिजिकल टॉर्चर बंद किया और पनिशमेंट को लिबरल कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक नई प्रथा शुरू की कि फ्राइडे खुतबा को ना, शुक्रवार को जब खुतबा पढ़ा जाता था जामा मस्जिद में, तो बस अभी जो सुल्तान रूल कर रहे हैं बस उसका नाम लिया जाता था। उन्होंने कहा कि बस उनका नहीं, हर सुल्तान का नाम लिया जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर Firoz Shah Tughlaq. Next problem that confronted Firoz Tughlaq was near economic bankruptcy of the state. He was conscious of the fact that in order to obtain stability of his rule, general economic health of the country should be improved, royal treasury replenished, and the financial credit of the government restored. He therefore took keen interest in the revenue establishment, though he was not an expert in the financial affairs. He thoroughly revised fiscal policy of his predecessor with the twin objective of ensuring adequate state revenues and reducing the burden on the taxpayer. He imparted theocratic tinge to the taxation policy by abolishing as many as 23 cesses, including अनपॉपुलर ग्रेजिंग ऑफ द हॉर्स टैक्स। ग्रेजिंग ऑफ द हॉर्स होना चाहिए, वहाँ पर हाउस लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन ऑफ द इस्लामिक लॉ, ओनली 4 टैक्सेस वेर रिटेन: खरज, ज़कात, जिजिया एंड खम्स। खम्स को खुम्स भी कहा जाता है। द रेट ऑफ खरज, the land revenue, was considerably lowered and brought to 1/10 of the estimated produce, to great relief of the agriculturalist. The early sultans of Delhi, particularly Alauddin Khalji, used to acquire from the soldier 4/5 of the booty obtained during the war as khums. But Firoz Tughlaq, following strictly the Islamic injunctions, reserved the ratio and wanted his soldiers to pay only 1/5 of such spoils to the state exchequer. तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स किए इनके पास, क्योंकि पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो इकोनॉमिक बैंकरप्सी में चले गया था मोहम्मद बिन तुगलक के प्रोजेक्ट्स की वजह से और रिवोल्ट्स की वजह से। तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है कोशिश किया कि वापस से टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ सुधार आए। इन्होंने सारे 23 एडिशनल टैक्स को समाप्त कर दिया, जिसमें कि चराई भी थी, मतलब हॉर्स जो ग्रेज करते थे उस पर भी टैक्स था, तो वो भी समाप्त कर दिया। इस्लामिक लॉ के हिसाब से खरज, जकात, जजिया और खुम्स बस किया गया अलाउड। पुराने जो दिल्ली के सुल्तान थे जैसे अलाउद्दीन खलजी और बाकी, वो लोग जो है 4/5
जो है वो खुम्स क्या हो गया, वॉर टैक्स, कि वॉर में जो भी जीते तो फिर उसमें से इस्लाम के हिसाब से एक पार्ट सुल्तान का होता था, उसको 5 पार्ट में बांटा गया। जो भी वॉर से सपोज 500 जीता तो 5 पार्ट में बांटा गया, 100 सुल्तान का होगा और 400 जो है वो सोल्जर्स में बांटा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 400 खुद रखते थे, 100 सोल्जर्स में बांटते थे। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग द नंबर्स। बट फिरोज़ तुगलक क्या करते थे, क्या किया इन्होंने, वापस से इस्लामिक लॉ पर ये बेंड हुए और ये जो है ये 1/5 रखने लगे, मतलब ये 100 रख रहे हैं और 400 जो है सोल्जर्स अपने में बांटेंगे। इससे जो है सोल्जर्स इनके तरफ हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है खर्च, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था उसको जो है 10 गुना घटाया ताकि एग्रीकल्चरलिस्ट पे बर्डन ना हो। On the other hand, in order to show his religious zeal, Sultan extended the scope of jizya by levying it on Brahmins also who had previously been exempted from this tax. फिरोज शाह तुगलक लेकिन दिखाना चाहते थे लोगों को कि मैं, क्योंकि इनकी माँ हिंदू थी तो कभी इस बात पर क्वेश्चन ना आए कि ये जो है ये ट्रू मुस्लिम है कि नहीं, क्योंकि इनको जिन्होंने बनाया है वो जो है वो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं। तो ये अपने रिलीजियस झील को दिखाने के लिए जिजिया जो है, जिजिया बहुत कोई ना रिलीजियस टैक्स कहते हैं, बट ये रिलीजियस टैक्स नहीं है, ये पोल टैक्स है। मतलब आपको जो भी स्टेट प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में टैक्स, जो भी सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड कर रहा है जैसे रोड वगैरह, तो उसके बदले में जो टैक्स होता है उसको जिजिया कहते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया लगता था। तो जिजिया जो है ये जो है, क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट है तो नॉन मुस्लिम को टैक्स पे करना होगा जो भी किया जा रहा है वेलफेयर के लिए उस पर, और मुस्लिम ज़कात पे करते थे। तो जिजिया जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पर भी लगवा दिया। At a later stage, Firoz introduced with the approval of theologians irrigation tax at 10% of the produce of the land which were irrigated by state constructed canal. The Sultan deputed Khwaja Hisamuddin Junaid to prepare a rough estimate of public revenues of the state. He, accompanied by a large body of staff, travelled through the kingmen for some 6 years and after examining revenue records of various provinces, assessed the revenue expected from the Khalsa land at 6 crore and 85 lakh टंकास। तो क्या हुआ, इसके बाद फिरोज़ तुगलक ने जो है क्या किया, उनको कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो कनाल जो कि इरिगेशन में हेल्प कर रहा है लोगों से, तो आप इरिगेशन पर 10% टैक्स लगा सकते हो। सुल्तान ने जो है ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद को भेजा कि आप पूरे एम्पायर में देखो कि कितना टैक्स लग सकता है इस चीज़ों पर, वाटर मतलब ये इरिगेशन टैक्स। तो खालसा लैंड को जब उन्होंने पूरा एसेस किया ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद ने तो उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 85 लाख टंका तो खालसा लैंड से ही हो जाएगा। बहुत सारे रफ़ और रेडी मेथड्स तैयार किए गए लोकल ट्रेडिशन और कस्टम पर बेस्ड, जो कि अडॉप्ट किया गया लैंड रेवेन्यू को असेस करने के लिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट डिमांड ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल वॉज टोटली डिस्कार्डेड। नेवरदलेस फिरोज तुगलक अटेम्प्टेड टू प्रेस्क्राइब द स्टेट डिमांड ऑन मोर और लेस परमानेंट बेसिस. It helped him in ensuring a steady flow of revenue into the exchequer and regulating the expenditure of the state in accordance with the income. तो क्या हुआ कि पुराना जो साइंटिफिक मेज़र था कि जो अच्छा लैंड है उससे इतना लेना है, जो ख़राब लैंड है उससे इतना, वो ख़त्म हो गया और लोकल जो कस्टम है उसी हिसाब से आप लैंड को मेज़र करो और क्या करो कि आप टैक्स दो। लेकिन उन्होंने जो है कम टैक्स लिया, लेकिन एक परमानेंट बेसिस पर फिरोज़ तुगलक ने जो है कोशिश किया कि परमानेंट बेसिस पर टैक्स मिले ताकि रेगुलर टैक्स आते रहे और उस हिसाब से वो काम करते रहे। Firoz Tughlaq permitted the collection of jizya through coercive means, otherwise his revenue officers were under strict instruction not to make demands in excess of the regular government dues, and those who found guilty in any such exaction had to make full reparation. Firoz Tughlaq's motto was, better a people wheel than treasures vast, better an empty chest than hearts downcast. तो फिरोज़ तुगलक वैसे उन्होंने जिजिया के कलेक्शन में जो है थोड़ा फोर्सफुल मीन जो है वो अलाउ किया हुआ था। उनके रेवेन्यू ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट था कि वो जो है डिमांड नहीं करना है एक्सेस ऑफ द रेगुलर गवर्नमेंट ड्यूज़। तो एक्सेस ऑफ द रेगुलर गवर्नमेंट ड्यूज़ जो भी है वो डिमांड नहीं करना है, और अगर किसी का पता चलता था तो फिर अगर किसी ऑफिसर ने ऐसा किया होता था तो ऑफिसर को जो है रेपरेशन देना पड़ता था। Interests of agriculturists were well protected
During the regime of Firoz Tughlaq, the Sultan constructed four or five fine canals which irrigated large tract of land in the vicinity of Delhi, including Hisar. Now, अभी मॉडर्न डे में हिसार को हरियाणा कहते हैं. न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट sprang up along the bank of these canal. According to Afif, 150 wells were sunk at the state expense to provide drinking water to travelers for irrigation. Firoz Tughlaq is said to have laid out 1200 state managed fruit garden in neighborhood of the capital. Their produce was sold in open market. It brought substantial income to the exchequer besides providing rich and nutritive food to royal household and populace of Delhi. तो एग्रीकल्चरिस्ट को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई. 4-5 कनाल भी डिग करवाए गए दिल्ली के अगल बगल में. एक तो हिसार या फिर हरियाणा में भी डिग करवाया गया. इसके साथ साथ 150 कुएं खुदवाए गए जो कि स्टेट ने अपने पैसों से खुदवाए, और जो कि कोई ट्रैवलर आएगा, राहगीर आएगा तो वो भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता था, और इरिगेशन के लिए भी यूज़ होते थे. 1200 फ्रूट गार्डन्स बनवाए गए जिनके फल जो हैं वो बेचे जाते थे, तो उससे भी पैसा आता था स्टेट को, और दिल्ली की जनता और स्टेट जो है वो न्यूट्रिटिव फूड को जो है का लुफ्त उठा पाती थी. फिरोज़ तुगलक जो है उन्होंने जो है ट्रेड और कॉमर्स को जो है प्रमोट किया और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया उन्होंने. इस वजह से ट्रेड और कॉमर्स जो है वो और प्रमोट हुई. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होती है, जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे हैं, तो वो उसमें जो टैक्स लगता है फ्रॉम टैक्स किस चीज़ पर, गुड और सर्विसेज को एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करने पर जो टैक्स लग रहा है. ये सारे मेजर्स से क्या हुआ कि फाइनली कंट्री को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स से पैसे आ रहे थे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड कॉमर्स वापस से ठीक हुआ, रैयत जो है वो रिच और सेटिस्फाई हुए, और इससे क्या हुआ कि लोग जो है वो वापस से प्रॉस्पेरिटी और पीस की तरफ बढ़े. कहा जाता है abundance of necessaries of life prevailed in the reign of Firoz Shah, not only in the capital but throughout his dominance. During the whole 40 years of his reign, there was no appearance of scarcity, and the times were so happy that people of Delhi forgot the reign of Alauddin, although no more prosperous times than this had ever fallen to the lot of any Mohammedan sovereign. तो क्या होता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय लोग इतने खुश थे कि लोग जो हैं वो अलाउद्दीन के समय की बातें भूल गए. लोग खुश थे, कोई स्कार्सिटी नहीं थी. 40 साल तक लोगों ने पीसफुली जिया. अफीफ़ जो हैं वो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं प्लेंटी और चीपनेस पर, जो कि अलाउद्दीन खलजी और फ़िरोज़ तुगलक के समय में था. अलाउद्दीन के समय में नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल थी, एक्सीलेंट मैनेजमेंट था, बट थ्रू द फेवर of God, grain continued cheap throughout the reign of फिरोज शाह. अलाउद्दीन ने मैनेज किया था ग्रेन को, और भगवान की कृपा से जो है फ़िरोज़ तुगलक के समय में तो पहले से ही ग्रेन जो है वो चीप ही, सस्ता रहा. ग्रेन इतना चीप था फ़िरोज़ तुगलक के समय में कि वीट जो है वो 8 जीतल और बार्ली जो है वो 4 जीतल में 1 मन मिल जाता था. कोई भी कैंप फॉलोअर जो है वो आराम से अपने घोड़े को 3 सिर्स कॉर्न खिला सकता था और 1 जीतल में. फैब्रिक्स जैसे हर तरह के कपड़े जो हैं वो भी काफ़ी सस्ते हो गए थे, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ फ़िरोज़ तुगलक को. फ़िरोज़ तुगलक एग्रेरियन पॉलिसी वॉज इन नो वे प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक. इंस्टेड ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द स्टेट मशीनरी इन द मैटर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, the Sultan entrusted the work to the bidders, contractors or middlemen. The revenue officials were liberally provided, but though rent-free land grants, Firoz Tughlaq revived Jagir system with a vengeance. The whole kingdom was parcelled out into fiefs, and the fiefs into districts, which were held by regional and local government officials, almost at personal states. In addition to the land grants, nobility as well as bureaucracy received fat allowances, which enabled them to accumulate large fortunes. The nobles enjoyed considerable power in the internal administrative affairs of their rent-free holdings, which cut at very root of uniformity of administration and integrity of central authority. The system of granting land or assignment upon the revenues were extended even to the junior ranks, which did an incalculable harm in the long run to the
army establishment as well as the state. Soldiers on active duty were unable to collect the revenue by themselves and sold out their assignment deed at a discount to the professional revenue collector or middleman. Afif writes that it was the practice of certain person in those days to buy up assignment which was an accommodation to both parties. They used to give one third of the value for them in the city and receive one half in the district. The purchases of these assignments carried a traffic in them and gaining a good profit, many of them got rich and made fortunes. These evil practice robbed the soldiers of their officially declared emoluments and sapped the vitality of the state and ultimately ruined the cultivators, and they were fleeced by the contractors and middlemen who grew more and more influential and powerful with the passage of time. In the absence of strong incentive and support from center, the officials could do pretty little against them. Agrarian reform of Firoz Tughlaq therefore did more harm than good to peasants as well as state economy in the long run. तो क्या हुआ, इन्होंने अग्रेरियन रिफॉर्म कैसे किए, कुछ भी साइंटिफिक नहीं किया, उल्टा इन्होंने क्या किया गड़बड़, इन्होंने मिडिल मैन यानी कि दल्लों को बीच में घुसा दिया एग्रीकल्चर सिस्टम के, जागीर सिस्टम को वापस से इन्होंने ठीक कर दिया, तो अब लोगों को जागीर में देने लग गए। इससे क्या हो गया, नोबिलिटी और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो रिच बनती गई, उनको जो है लोग जो है कोई कुछ भी देने के लिए जो है उनको रेंट फ्री होल्डिंग्स मिलने लग गई और बाकी चीज़ें, उनको सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, उनके पैसे बढ़ते चले गए। और क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, मिडिल मैन जो है वो अब वो एक्सट्रैक्ट करने लगे टैक्सेस, है ना, वो तो जो फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। सपोज़ स्टेट को 20 रुपये चाहिए एज अ टैक्स, अब ये मिडिल मैन और जागीरदार आ गए हैं बीच में, तो ये मिडिल मैन और जागीरदार जो है वो 30 रुपये ले लेते हैं और 10 रुपये खुद रख लिया और 20 रुपये स्टेट को दिया। और वो फार्मर, तो स्टेट ने देखा कि 35 रुपये हो रहे हैं, 15 वो खुद रखे, 20 रुपये दे, और इन्होंने क्या किया, एट टाइम्स कभी कभी तो स्टेट के बराबर भी ले लेते थे ये लोग। तो इससे क्या हुआ, फाइनली जो है एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो फिरोज शाह तुगलक लाए, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं थे, फिर से जागीरदार्स को बीच में डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, लोग जो हैं वो बहुत ऑप्रेस होने लगे। पब्लिक वेलफेयर वर्क, फिरोज़ तुगलक जो हैं उन्होंने वो बहुत बड़े फिलेंट्रोपिस्ट थे, तो वो खुद को जो है वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स को डिवोट करना चाहते थे। उनके पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़े रिलीजियस बायगॉट में अपीयर होते हैं, जो कि एक्चुअली में हु इंटेंडेड टू डू एवरीथिंग फॉर हिज को रिलीजियनिस्ट, तो वो जो है वो मुस्लिमों को ज़्यादा फेवर करते थे। एल्बेट मैनी ऑफ हिज फिलॉन्ट्रॉफिस डिड बेनिफिटेड ऑल द पीपल, बहुत सारे इनके अच्छे कामों ने हिंदू मुस्लिम दोनों को हेल्प किया, लेकिन ये मानते थे कि पुअर और डाउन ट्रोडन लोगों को जो है ऊपर उठाना इनकी जो है रिलीजियस ड्यूटी है। तो इस चीज़ों से सबको हेल्प हुआ, लेकिन जो है इनके जो वर्क्स हैं उसमें थोड़ी हमको जो है ये दिख जाती है कि ये मुस्लिम्स को थोड़ा ज़्यादा इन्होंने फेवर किया हिंदूज़ के कंपैरिजन में। रिटन सरमन डिलीवर्ड टू द फ्राइडे मास ऑफ जामा मस्जिद ऑफ फिरोज़ाबाद, सुल्तान क्या कहते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई ह्यूमन पावर आई शुड रिकाउंट एंड पे माई थैंक्स टू many blessings God has bestowed upon me, so I may be found among the number of his servant। तो फिरोज़ तुगलक कहते हैं कि मैं भगवान ने मुझे इतने जो है अल्लाह ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है, तो मैं जो है वो इसलिए मैं उसको जो है रिटर्न करना चाहता हूँ, ताकि मैं एक गॉड का सर्वेंट हूँ और ये और वो। फिरोज़ तुगलक ने जो है एक दीवाने खैरात करके एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि पुअर और नीडी लोगों को जो है हेल्प करते थे। दीवाने खैरात की एक फंक्शन ये भी थी कि पुअर मुस्लिम गर्ल्स जो थी उसका मैरिज ये लोग जो है स्टेट एक्सपेंस पर, मतलब गवर्नमेंट करवाती थी। God fearing extremely humble in his deposition, Sultan paid regard to the holy men, repaired tombs of Sufi saints, created endowments fund through grant of land
for maintenance of khankas and looked after the comfort of fakir and all those devoted religious pursuit. क्योंकि वो एक्चुअली ना उनको भगवान से बहुत डर लगता था, अल्लाह से बहुत डर लगता था, तो वो क्या करते थे, होली मैन के जो कब्र होते थे वहाँ पर वो जाते थे, सूफ़ी संत के टॉम्स को, मकबरे को देखने जाया करते थे, खानकाज बनवाते थे, है ना। फिर इन्होंने जो है ओल्ड एज पेंशन देना शुरू कर दिया एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तरफ से, अनएम्प्लॉयड लोगों को वर्क देना शुरू किया, ठीक है। ऑफ कोर्स अ स्टेप ऑफ मिसप्लेस्ड एंड मिलिट्री सर्विस टू द पर्सन्स फॉर लाइफ, to the misplaced generosity taken by Firoz Tughlaq, which was that he began to offer civil and military एक गलत काम इन्होंने क्या किया, सिविल और मिलिट्री सर्विस को इन्होंने जो है ऑलमोस्ट हेरिडिटरी बना दिया, हायर ऑफिसेस हेरिडिटरी हो गए, मतलब अगर फादर किसी हायर ऑफिस पे हैं तो उनके अब बच्चे ही वो वहाँ पर जाएंगे। उन्होंने, तो ये बुरी बात थी, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने चैरिटेबल किचन्स चलाए जिसमें हर गरीब को जो है फ्री फूड दिया जाता था, सराई और सड़कों का निर्माण करवाया, पिलग्रिम्स खोला जहाँ पर जो है महान राजाओं के, सूफी संतों के जो है मकबरे थे, वहाँ पर पिलग्रिमेज बना दिया, वो धार्मिक स्थल बना दिया। सुल्तान खुद लिखते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग द थिंग्स नेसेसरी इन दीज होली प्लेसेस आई confirmed and gave effect to the grant of village land and other endowment which have been conferred upon them in olden times। बोला कि इन जगहों पर जो भी चीज़ नेसेसरी है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले भी इनको मिला करती थी। कोई भी केस में जहाँ पर जो है प्रोविज़न सेटल हो चुका है तो मैंने जो है कोशिश, सेटल नहीं हुआ तो मैंने जो है उसको कोशिश किया है सेटल करने का, और ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। आई मेड एन इंडोमेंट सो दैट दीज इस्टेब्लिशमेंट माइट बी एवर बी सिक्योर फॉर ऑफ एन इनकम टू अफोर्ड कम्फर्ट टू ट्रैवलर वेफेयर। तो ये जो सराई बनाया, सड़कों का निर्माण करवाया, फ्री खाना प्रोवाइड करवाना, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि कोई भी राहगीर आता है, कोई होली मैन या लर्नेड मैन आता है तो उनको जो है उनको फ़ायदा हो, मैंने इसलिए ये सब करवाया। इन्होंने जो है एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोला जिसको दारुल शफा कहते हैं, और यहाँ पर जो है सारे सिख पर्सन को काफ़ी बेनिफिट मिला। रेसिडेंट और ट्रैवलर्स, जेंटल और सिंपल लोगों को जो है वो हेल्प मिलता था। क्वालिफाइड फिजिशियंस को अपॉइंट किया गया, वो जो है आउटडोर और इंडोर जो है वो पेशेंट को फ्री मेडिसिन और फूड दिया करते थे। प्रोविंशियल ऑफिसर्स जो हैं उनको माना जाता था कि वो सुल्तान को देख करके वो भी जो है अपने अपने प्रोविंसेस में जो है ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोलें। एक बेनेवोलेंट रूलर, मतलब जो लोगों का भला सोचते हैं, सुल्तान जो है उन्होंने एक बेनेवोलेंट रूलर की तरह कनाल बनवाया, पुराने कनाल जो बर्बाद हो चुके थे उसको ठीक करवाया। हौज ए इलाही या फिर टैंक ऑफ अलाउद्दीन खलजी जो कि दिल्ली में थी, वो जो है वो पूरी डिस्यूज़ हो गई थी और वो जो है मिट्टी से भर गई थी, और लोग जो हैं वो कल्टीवेशन करते थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद वहाँ पर क्या किया गया, कुएं बनवाए गए और पानी जो है विच दे सोल्ड वाटर, और वहाँ पर कुएं बनवा करके जो है ना लोग जो है उससे पानी कैरी करके पानी बेचा करते थे। सुल्तान ने उस एरिया को जो है क्लीन करवाया, क्लीन्ड आउट सो दैट द ग्रेट टैंक माइट अगेन बी फिल्ड। तो सुल्तान ने, यहाँ पर लोग पानी बेच रहे हैं, है ना, तो सुल्तान ने इस एरिया को क्लीन करवाया और वापस से जो है इसको जो है पानी से भरा ताकि लोगों को फ्री वाटर अवेलेबल हो सके। हौज ए शमशी या फिर टैंक ऑफ इल्तुतमिश जिसमें पानी ही नहीं जा रही थी, उसको भी वापस से क्या किया गया, उसको भी फ़िरोज़ तुगलक ने जो है वहाँ पर ठीक करने की कोशिश की। हु स्टॉप्ड अब, और कुछ लोग थे ऐसे जो कि हौज़े शमसी या फिर इल्तुतमिश के टैंक में पानी जाने में रुकावट क्रिएट कर रहे थे, आई एम सो सॉरी। तो फ़िरोज़ तुगलक ने जो है उनको पनिश किया। फ़िरोज़ तुगलक ने जो है एजुकेशन और लर्निंग में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। स्कॉलर, राइटर, मौलवीज़, उलेमा, इन सबको उन्होंने लिबरल अलाउंसेस दिया स्टेट की तरफ से। स्कूल खोला, मकतब्स और मदरसास खोला, कॉलेजेस इम्पॉर्टेंट टाउन्स में, और बहुत सारे एलिमेंट्री स्कूल्स भी खोले गए जो कि मस्जिद से लगे होते थे पूरे सल्तनत में ही। मदरसा ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश इन द कैपिटल हैड बीन क्लोज्ड and its building lay in ruins.
तो इल्तुतमिश का जो इल्तुतमिश ने जो एक मदरसा खोला हुआ था वो एकदम बर्बाद हो चुका था। फ़िरोज़ तुगलक ने उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसके जो गेट होते हैं, डोर होते हैं, दरवाज़ा होता है, उसको सैंडलवुड से बनवाया और फिर इसको जो है हायर लर्निंग के लिए वापस से खोल दिया गया सबके लिए। फ़िरोज़ शाही मदरसा जो कि फ़िरोज़ाबाद में है उसको भी बनवाया गया इसी ऑब्जेक्टिव से कि हायर लर्निंग को प्रमोट किया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस्लामिक स्टडी को ही प्रमोट करती थी। फ़िरोज़ तुगलक जो है उन्होंने कुछ संस्कृत बुक, पर्टिकुलरली वो वैसे बुक जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी और एस्ट्रोलॉजी से डील करते थे, उसको जो है पर्शियन में ट्रांसलेट करवा करके जो है रखा गया था। अक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नागरकोट, जो कि नागरकोट के कॉन्क्वेस्ट से मिला था, उसको भी जो है लोगों को अवेलेबल करवाया गया था। फ़िरोज़ तुगलक जो है उन्होंने रिफ़ॉर्म किया कॉइन मिंटिंग में। पुअर क्वालिटी के कॉइन जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लोगों ने फ्रॉजरी कर ली थी, ये सारी चीज़ें, तो इट सीम्स टू हैव लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट। तो फ़िरोज़ को ये बातें बड़ी बेचैन कर रही थी और वो बहुत ही इस वजह से उन्होंने जो है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे कॉइन के क्वालिटीज़ को ठीक करने में, ताकि एक स्टेट का पता चल सके कि अरे ये कॉइन स्टेट ने बनाया है, ये गड़बड़ है। खान जहान मकबूल जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे फ़िरोज़ शाह के, उन्होंने व्हेन आस्क्ड बाय सुल्तान टू उनको पूछा गया सुल्तान ने कि आप बताइए कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो कॉइनेज ऑफ किंग वाज लाइक अनमैरिड डॉटर whom no one would seek after, however beautiful and charming she might be, if any aspersion had either rightly or wrongly been cast upon her character। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि किंग का कॉइनेज जो है ना वो एक बिन ब्याही बेटी की तरह है, जिसके कैरेक्टर पर अगर एक बार सवाल उठ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन कोई उससे शादी नहीं करता। So also with royal coins, if anyone honestly or falsely from interested motive alleged a deterioration of the coin, insuation would be spared, the coinage would obtain a bad name। तो बोलता है अगर कोई सिक्कों पर भी सवाल उठाएगा तो इससे भी क्या हो जाएगा कि क्रेडिट जाएगी, इसीलिए और फिर सिक्के कोई लेने नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली में टोकन करेंसी के ही बारे में बात हो रही है। तो क्या कहा जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन दो बेस्ड ओरिजिनली ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल कंटेन देयरिन ought to be such that they should not lose credibility to the people with the fluctuation in their price level year after year। Being conscious of this fact, फ़िरोज़ तुगलक improved the technique of mint। तो फ़िरोज़ तुगलक को पता था कि कभी प्राइस का मतलब ना गोल्ड का डिमांड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाता है फिर जो है ना क्रेडिबिलिटी घट बढ़ जाती है। इस वजह से इन्होंने जो है मिंटिंग टेक्निक्स को बेटर करवाया। गोल्ड और सिल्वर टंकास को जो है इन्होंने बिसाइड्स गोल्ड और सिल्वर टंका के अलावा इन्होंने जो है ब्यूटीफुल कॉइन्स रिस्पेक्टिव वैल्यू की, जैसे 48 जिसको कि चीहल ओ हश्तगानी 25, 24, 12, 10, 8 एंड 6 के इन्होंने जीतल कॉइन्स मिंट करवाए, जो कि जिसमें सिल्वर भी था, जिसमें सिल्वर के भी प्रपोर्शंस थे बट प्योरली सिल्वर नहीं था, दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करवा के। इन्होंने जो है अबंडेंस में फ्रैक्शनल करेंसी प्रिंट करवाए लोअर डिनोमिनेशन के, जैसे कि कॉपर ब्रॉन्ज के करेंसीज बनवाए। मच ऑफ द फ्रैक्शनल करेंसी जो इन्होंने यूज़ किया पब्लिक के लिए, तो वो एक्चुअली डेली ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि ये लोअर वैल्यू के हुआ करते थे तो उसमें यूज़ होते थे। इस तरह कुछ इन तरीक़ों से फ़िरोज़ तुगलक ने जो है वो मिंटिंग ऑफ कॉइन को एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया स्टेट के लिए, और किसी ने कभी भी सुल्तान को मिसट्रस्ट नहीं किया, और उन्होंने जो है टोकन करेंसी का एक्सटेंसिव सर्कुलेशन भी धीरे धीरे पॉपुलराइज किया। यूज़ ऑफ प्योर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन जो है वो कन्फाइंड था टू द बिजनेस। अब स्टेट के ट्रांजैक्शन में या फिर हाईली इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट लेवल वाले कामों में ही अब गोल्ड और सिल्वर ट्रांजैक्शंस यूज़ होते थे। फ़िरोज़ तुगलक जो है एक बिल्डर थे, उन्होंने नई सिटीज़ बनाई, नए टाउन्स बनवाए, एग्जिस्टिंग अर्बन हैबिटेट्स को ठीक किया, फोर्ट्स बनवाए, पैलेसेस, मॉस्क, टॉम्ब, वाटर रिजर्वॉयर्स, कारावान, सराय, ब्रिज, कनाल, पब्लिक बाथ सब बनवाया, गार्डन्स बनवाया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटी सब बनवाया।
उन्होंने जो है शहर बनवाए, जैसे कि फ़तेहाबाद, हिसार फ़िरोज़ा, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद, जिसको अब कोटला फ़िरोज़ शाह कहते हैं। ये सारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनाया। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया पुराने मॉन्यूमेंट्स को बचाने में। रियल सिग्निफिकेंस उनको नहीं पता थे अशोकन पिलर के, लेकिन फिर भी जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो 2 अशोकन पिलर, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट थे तो उनको जो है दिल्ली लाया। एक टोपरा से लेकर लाया और दूसरा मेरठ से। टोपरा और मेरठ से जो है अशोकन पिलर लेकर के आया और उनको जो है फ़िरोज़ाबाद में ट्रांसप्लांट करवाया गया। फ़िरोज़ तुगलक जो है माना जाता है कि 36 फैक्ट्री या कारखाना इन्होंने खुलवाया, जो कि लाइफ और लग्जरियस गुड बनवाया करती थी। रॉयल गुड और पब्लिक के डेली यूज़ के गुड भी बनाया करती थी इन फैक्ट्रीज़ में। और फिर इनको जो है दीवाने वजारत या फिर दीवान खाना जो है, दीवाने वजारत का जो एक स्पेशल ब्रांच था दीवान खाना, वो जो है वो फैक्ट्रीज़ को मैनेज करते थे। लेबर को जो है लेबर फोर्स कहाँ से मिलता था? वो गुलामों से मिल जाता था। स्लेव्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि वो सोसाइटी में कुछ काम में आ सकें। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है मतलब लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने जो है स्लेवरी को बढ़ावा दिया। माना जाता है कि 1,80,000 स्लेव जो हैं उन्होंने रॉयल कारखानों में लगवाया, अपने काम में लगवाया, और 40,000 स्लेव जो हैं उन्होंने रॉयल पैलेस को जो है गार्ड करने के लिए लगाया और रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लगाया। सुल्तान जो है वो स्लेविंग के प्रैक्टिस को, मतलब जो कि वॉर में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको जो है गुलाम बनाने के प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करते थे। और कभी कभी जो है वो इनफेडरल टेरिटरीज़ पर रेड लगाते थे, मतलब जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको वो रेड लगाते थे, ताकि वो जो है वहाँ से वो स्लेव्स इकट्ठा कर पाएँ जिसको वो फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट करें। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं नोबिलिटी के, वो जो है वो इनके इंस्ट्रक्शंस को मानते थे, बट इन सारी चीज़ों से जो है कुछ ये चीज़ें गड़बड़ हुई इनके समय में। सुल्तान जो है उनको अनक्वालिफाइड लॉयल्टी चाहिए थी और सर्विस चाहिए था स्लेव से। Though paid liberally by the Sultan, most of them did not reconcile themselves to the loss of personal liberty and nor did they develop the feeling of loyalty. सुल्तान उनको पे भी करते थे, लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो लॉयल नहीं हो पाए सुल्तान को या रूलिंग फैमिली को। इसका एक स्पेशल रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये था क्योंकि वो जो है उनको अपनी पर्सनल लिबर्टी ज़्यादा प्यारी थी। ठीक है, तो ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स के डेथ के बाद जो है ये मतलब ये एक्चुअली में ही दीज स्लेव्स वर नॉट लॉयल। ओके, तो क्या होता है, दे सर्व्ड सुल्तान ड्यूरिंग लाइफ टाइम बट रेक्ट देयर वेजेंस अपॉन द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली आफ्टर हिज डेथ। दे अनहेस्टिंगली चॉप्ड ऑफ द हेड ऑफ द प्रिंसेस एंड हंग देम एट द गेट ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो ये स्लेव्स ही जो हैं बाद में रॉयल फैमिली को बर्बाद करके रख देंगे। फ़िरोज़ तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। वो जो है धार्मिक भेदभाव करते थे स्टेट पॉलिसी में, लेकिन वो बाय नेचर वो एक जेंटल और अच्छे इंसान थे। वो क्रूएल नहीं थे किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ भी एक्चुअल प्रैक्टिस में, और वो जो है उनको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी। वो खुद भी उनके साथ वही बात था जो बलबन के साथ था, क्योंकि बलबन हाई क्लास को नहीं बिलोंग करते थे ना, तो बलबन खुद को बहुत हाई दिखाते थे, और वो जो भी लो था, क्योंकि बलबन खुद भी हाई को नहीं बिलोंग करते थे, तो वो जो भी लो होता था उसको वो हाई पोस्ट पर नहीं आने देते थे, ये दिखाने के लिए कि वो तो हाई को बिलोंग करते हैं। तो वही सेम प्रॉब्लम जो है फ़िरोज़ शाह के साथ था। उनको लगता था कि उनकी माँ जो है एक काफिर है, क्योंकि उनकी माँ हिंदू है, तो ऐसे में वो जो है ना वो खुद में गलत मानते थे, खुद को लो मानते थे, और ऐसे में क्या होता था कि वो रिलीजियस बाइकॉटरी कर देते थे। तो वो जो है ये सारी चीज़ें हैं। हमको जो है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी, तो वो सबको दिखाना चाहते थे कि वो इस्लामिक स्टेट के एक फेथफुल पब्लिक सर्वेंट है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है हिंदुज़म के अगेंस्ट जो है थोड़ा हेट्रेड भी दिखाया या फिर रिलीजियस बाइकॉटरी दिखाई, और साथ साथ जो है उन्होंने इस्लाम के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़ील दिखाया। वो इक्वली इंटॉलरेंट थे टू शियाज़। जितने हिंदूज़ को इंटॉलरेंट थे वो उतने ही इंटॉलरेंट वो सियाज़ को भी थे और दूसरे मुस्लिम डिसेंटर्स को भी थे। He always attempted to win the goodwill and support. वो हमेशा उलेमा का सपोर्ट चाहते थे। अभी जो है ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट आई थिंक, फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ़िरोज़ शाह. वी कैन कंप्लीट इट इन दिस लेक्चर इट सेल्फ. इट विल जस्ट बी अ
लार्ज, इट विल जस्ट बी अ लॉन्ग वीडियो। तो फिरोज शाह जो है वो एक, उनको पीस पसंद था, वो जो है खून खराबे से दूर रहते थे, पुअर मिलिट्री जनरल थे वो खुद भी, उनके पास स्किल भी नहीं था, वो फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग एम्पायर था जो बर्बाद हो रहा था, ठीक है। और वो उसको जो है वो कोशिश, वो बिल्कुल लॉस्ट टेरिटरीज लेने की उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको कोई जो है कॉन्क्वेस्ट में कोई रुचि नहीं थी, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था उनका, ठीक है। और वो जो है कभी उन्होंने कोशिश नहीं किया कि डेक्कन को वापस लिया जाए या दिल्ली के इधर उधर जो है कोशिश किया जाए सल्तनत को बढ़ाने का। बंगाल जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिरोज तुगलक ने जो है 2 अटेम्प्ट किया बंगाल को कॉन्कर करने का, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। फर्स्ट एक्सपीडिशन जो है बंगाल के खिलाफ 1353-54 में किया गया। हाजी इलियास जो कि बंगाल के रूलर थे, उनको जो है हरा दिया गया एक ब्लडी इनकाउंटर में, और फिर वो जो है वो भाग करके उन्होंने जो है इकदाला के किले पे जो है शरण ले लिया। और फिर प्रॉम्प्टली जो है रॉयल ट्रूप्स जिसको कि ततर खान लीड कर रहे थे कमांडर इन चीफ बन करके, उन्होंने उसको जो है बिसीज कर लिया। जब ये विक्ट्री दिख रहा था हाउएवर, तो शेख और वालिस जो हैं ऑफ द वुमेन ऑफ द फोर्ट अरोज द फीलिंग ऑफ कंपैशन इन द हार्ट ऑफ सुल्तान एंड ही रेज द सीज ऑन द प्ली। तो क्या हो गया ना कि लोगों ने जब जब से तो सुल्तान को ना क्या हो गया कि वुमेन ऑफ द फोर्ट और बाकी लोगों पर दया आने लगी, तो सुल्तान ने जो है वो सीज हटा दिया। टू स्टॉर्म द फोर्ट पुट मोर मुसलमान्स टू द स्वॉर्ड एंड एक्सपोज ऑनरेबल वुमेन टू ignominy would be a crime for which he could not answer on the day of judgment and which would leave no difference between him and the Mongols। क्योंकि इनको लग रहा था क्या कि अगर वो जो है ये सीज़ कर लेंगे बंगाल के उधर के फोर्ट को, ऑलमोस्ट इन्होंने हरा दिया था, लेकिन इनको लग रहा था कि मैं अगर मुसलमानों को मारूं और ऑनरेबल वुमेन को गलत कर दूं, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जिस दिन जजमेंट होगा, जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन अल्लाह न्याय करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे और मंगोलों में जो है कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सुल्तान जो है उनके पास करेज नहीं था कि वो जो है टास्क कर सकें कैपिटल, ऐसा कुछ टास्क करें जिससे जो है मंगोल्स को, जिससे जो है ये बंगाल में जो है जो भी प्रॉब्लम्स है या बंगाल को जो है अपने अंदर लिया जाए, और वो कैपिटल खाली हाथ जो है वो कैपिटल लौट गए। और जब वो खाली हाथ कैपिटल लौटे तो ही मेड हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक, तो लोग जो है उन पर हंस रहे थे। हाजी इलियास जो है वो 1359 में जो है उनका निधन हो गया, वो मर गए हाजी इलियास। और फिर हाजी इलियास के बाद सिकंदर खान जो है वो रूलर बन गए बंगाल के। कुछ फ्यू बंगाली डिसअफेक्टेड नोबल्स जो है वो दिल्ली आए और उन्होंने सुल्तान को बोला कि क्या करें, बंगाल पर अटैक करें और बंगाल को रिकवर करें। तो 1359-60 में वापस से 70,000 घुड़सवार, इन्फेंट्री और वॉर लाइक एलिफेंट्स लेकर के ये लोग फिर से गए बंगाल की तरफ इसी ऑब्जेक्टिव से। सिकंदर खान के भी फोर्ट को जो है इन्होंने घेराबंदी कर लिया इकदला में, बट द रॉयल फोर्सेस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट वेयर अनेबल टू कॉन्कर द फोर्ट। लेकिन फोर्ट को, किले को ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए। ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा हो गई। सुल्तान जो है उन्होंने फाइनली सीज़ को, घेरेबंदी को उठा दिया और फिर बंगाल को माना कि बंगाल जो है वो आने वाले समय के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। जब ये बंगाल से रिटर्न हुए फिरोज तुगलक, तो रास्ते में उनको उड़ीसा में जो है हिंदू मिले, तो उनको उन्होंने जो है सब्जुगेट किया और फिर जाजनगर में जो है अपने मॉरल को बूस्ट करने के लिए क्या किया, या डिसहार्टेंड सोल्जर्स को बूस्ट करने के लिए उन्होंने जो है उड़ीसा पर थोड़ा बहुत हिंदू चीफ्टन्स को सब्जुगेट किया। बट दो अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन जो इन्होंने बंगाल में लीड किया, इससे जो है क्या हो गया, हमको समझ में आने लगा, लोगों को समझ में आने लगा कि रॉयल आर्मी जो है वो डिटीरियोरेट कर गई, वो हार रही है। फिरोज तुगलक ने एक एक्सपीडिशन जो है नगरको में भी किया, जो कांगड़ा में है, जहाँ पर हिंदू रूलर जो हैं उन्होंने वापस से खुद को मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। राजा वॉज besieged in the fort while the town of नागरकोट was occupied by the royal army and put to plunder। राजा को जो है वो फोर्ट में बंद कर दिया गया, घेराबंद कर लिया गया और टाउन को जो है लूट लिया गया। ज्वालामुखी के मंदिर को भी जो है बर्बाद कर दिया गया। राजा जो है उन्होंने खुद को बचा लिया, 6 मंथ तक उन्होंने खुद को बचाया और अल्टीमेटली जो है उन्होंने एक नॉमिनल सबमिशन दे दिया कि मैं दिल्ली को एनुअल ट्रिब्यूट दूंगा।
आखिरी मिलिट्री कैंपेन जो फिरोज़ तुगलक ने किया वो सिंध के अगेंस्ट था। सिंध को रूल कर रहे थे जाम बबिनिया, जो कि जिनका हेडक्वार्टर जो है वो थट्टा में हुआ करता था। सुल्तान जो है वो सिंध में जाकर के सिंध के फोर्ट में जो है उन्होंने सीज लगाया, कॉन्कर करने की कोशिश की, बट प्लेग फैल गया फिर से और सूखा भी पड़ गया था। तो रॉयल आर्मी जो है वो आधा से वो जो है आउट अ क्वार्टर ऑफ रॉयल आर्मी, तो मतलब कह लो कि आधे से कुछ कम रॉयल आर्मी तो ख़त्म हो गई। सुल्तान बहुत पैनिक में चले गए और फिर आर्मी को जो है गुजरात की तरफ लेके गए रिलीफ के लिए, बट मिसलेड इट टू ड्राई एंड बैरन रन ऑफ कच्छ। बट गुजरात में कहाँ ले गए, फर्टाइल लैंड में नहीं ले जा करके कहाँ ले गए, एकदम बर्बाद बंजर भूमि पर ले गए, रन ऑफ कच्छ में। और सोल्जर जो है वो आगे भी मरने लगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर जो है हॉर्सेस वो भी बहुत उथल पुथल हो गए। और फिर बट फॉर द टाइमली रिसिप्ट ऑफ री-इन्फोर्समेंट एंड प्रोविजन ऑफ खाने जहान, पर खाने जहान जो है इस समय काम आए। खाने जहान जो है वो आए और उन्होंने जो है रॉयल आर्मी को जो है बर्बाद होने से बचा लिया। जम बबिनिया जो है उनको वो अलार्म हो गए ये ट्रूप्स के वापस आने से, रन के वापस आने से, और फिर उनको लगा कि अब सबमिशन करना पड़ेगा। ही वॉज डिस्पोज एंड रिप्लेस बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज अ फ्यूडिटरी चीफ अंडर द नॉमिनल सुजरेनिटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो है इनको डिस्पोज कर दिया गया और फिर एक फ्यूडिटरी चीफ जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया जो कि दिल्ली के अंदर था। मिलिट्री पावर जो है रूलिंग हाउस ऑफ सिंध का वो जो है रिमेंड इंटैक्ट। तो मिलिट्री पावर जो है वो रूलिंग हाउस, वो सिंध के ही रूलिंग हाउस का बना रहा। न्यू जाम असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस, और नए जाम जो है उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया कुछ समय के बाद, जैसे ही दिल्ली सल्तनत से और सारा वास्ता ख़त्म कर लिया। तो सिंध एक्सपीडिशन भी जो है वो बंगाल के ही तरह क्या रहा, फेलियर रहा, क्योंकि फाइनली जो है कुछ तो हुआ नहीं, इन्होंने तो खुद को इंडिपेंडेंट ही कहा। इससे क्या हो गया, एक सीरियस ब्लो हुआ, इम्पीरियल आर्मी की जो है ना बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ गई। आर्मी जो है इस्टेब्लिशमेंट तुगलक का जो है वो फ्यूडल प्रिंसिपल पर बेसिकली बेस्ड था। तो बल्क ऑफ द इन्फेंट्री, हॉर्समैन, ये लोग जो है ये कौन दे रहे थे, नोबेल्स दे रहे थे। फिरोज़ तुगलक जो है उनके पास तो 80 to 90,000 की रेगुलर आर्मी थी, अपने प्रेडिसेसर या मोहम्मद बिन तुगलक से ली हुई। इसके साथ एडिशन में 40,000 माउंटेड गार्ड्स जो है फिरोज़ तुगलक ने अपने गुलामों से बना लिया था। तो एक लार्ज नंबर ऑफ मर्सिनरीज चाहिए थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे मिलते थे, नोबेल्स से जिनको लैंड दिया हुआ है, तो लैंड दिया बदले में वो आर्मी देते थे जब ये मांगते थे। तो ओल्ड इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से फिरोज़ तुगलक जो है रिकग्नाइज द राइट ऑफ एवरी सोल्जर टू रिटेन 4/5। तो फिर फिरोज शाह तुगलक क्या कहते थे कि कोई भी जब वॉर जीतेगा तो सोल्जर को 4/5 मिलेगा, वॉर से जो भी लूट खसोट हुआ है सोल्जर को 4/5 मिलेगा। और इससे क्या हुआ, हर सोल्जर को जो है बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, ग्रेट टेम्पटेशन टू द पीपल टू ऑफर फॉर मिलिट्री सर्विस। तो लोग जो है ना वो बहुत ही, उनको लगता था कि अरे इतना सारा प्रॉफिट होगा तो मिलिट्री सर्विस दे देते हैं। तो सुल्तान जो है वो एक्सेप्शनली लकी थे कि उनके सर्विस में जो है वो ब्रिलियंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजर्स थे, जनरल्स थे, जैसे कि कमांडर इन चीफ ततर खान, और फिर अरीज़ ममलिक मलिक बशीर इंटाइटल्ड इमादुल मुल्क एंड नायब अरीज़ ममलिक मलिक राजी। ये लोग जो है कुछ एक्सेप्शनल मैन थे जिनके पास प्रोफेशनल स्किल और कॉम्पिटेंस थी। ये सुल्तान का अच्छा लकी था कि इन्होंने जो है अच्छा स्टैंडर्ड जो है रॉयल फोर्स का मेंटेन करके रखा, वरना हर कोई आर्मी में घुसना चाहता था क्योंकि फ़ायदा जो हो रहा था। समय के बीतते बीतते लेकिन क्या हो गया कि अनप्रोफेशनल मेजर्स की वजह से फिरोज़ तुगलक जो है उन्होंने डिसिप्लिन और एफिशिएंसी जो है आर्मी की खो दी। इंस्टीड ऑफ सैलरी कैश में पे करने की जगह सुल्तान जो है वो जागीर देने लगे। इससे जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो जागीरदार वसूलने लगे। इससे क्या हो गया, फॉल्स नोशन ऑफ ह्यूमेन कंसिडरेशन। सुल्तान रिटेन आर्म्ड पर्सनल इन फॉर्मल सर्विस ऑफ द स्टेट फॉर लाइफ एंड बिगैन टू अपॉइंट मिलिट्री। और उन्होंने कहा कि क्या ये इंसानियत तो नहीं है, एक बार जॉब दे दिया तो कैसे ले सकते हैं, तो हेरिडिटरी देने लगे। इस वजह से जो है लोगों को क्या हो गया कि एक बार ऑफिस मिल गया तो मिल ही गया। तो अब उनमें जो है ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि हमें जो है ना कुछ मेंटेन करके चलना है या प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब बंद। इवन वो डिस्क्रिप्टिव रोल जिसको चेहरा कहा जाता था वो सब बंद हो गया, ठीक है।
और इसमें क्या हो गया, फिर अब गड़बड़ होने लगा, इसमें करप्शन फैल गया इस्टेब्लिशमेंट में, नेपोटिज्म फैल गया, फेवरेटिज्म फैल गया, और फिर इन सब चीज़ों की वजह से जो है डिसिप्लिन और सब चीज़ जो है, हाई मार्शियल स्पिरिट है ना, सब कुछ सबका सब चीज़ जो है वो पैरासाइट बन के नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ने जो है आर्मी को जो है अंदर से खोखला कर दिया। और इससे क्या हुआ कि ऑफेंसिव पावर ऑफ लॉयल आर्मी हैड बीन लॉस्ट ड्यूरिंग, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आर्मी जो है वो काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन उस ऑफेंसिव पावर यानी कि दूसरे पर अटैक करने का तो टैलेंट वो खो चुकी थी मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय, लेकिन अब वो खुद को बस बचा रही थी। डिफेंसिव तीत भी जो था वो भी फिरोज शाह तुगलक ने उनका तोड़ दिया, है ना। फिरोज तुगलक जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल थे एक इनविंसिबल आर्मी, मतलब इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता है, तो एक समय की ऐसी आर्मी जो हार नहीं सकती थी किसी से, फिरोज शाह तुगलक रिस्पॉन्सिबल थे ऐसी आर्मी को कम्प्लीटली मतलब बेकार कर देने में। ऐसी आर्मी जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और किसी भी एम्पायर का पावर जो है वो उसके आर्मी पर डिपेंड करता है, और क्योंकि एम्पायर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आर्मी ही ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, धीरे धीरे दिल्ली एम्पायर भी ख़त्म हो गया। और दिल्ली एम्पायर के डिसअपियरेंस की वजह से क्या हुआ, तुगलक डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई। Concluding years of Firoz Tughlaq reign were full of tragedy, trouble and turmoils which he was constrained to witness owing to his long and inactive life. क्योंकि ये जो लंबे समय तक एक तो ये रूल में रहे, और लंबे समय तक रूल में रहे तो स्ट्रिक्ट होकर के नहीं रहे, है ना, इनएक्टिवली रहे, हर बात को जो है ये लड़ने से बहुत बचते थे और हर बात को कह देते थे कि इनह्यूमन है। एडवांस्ड एज एंड फॉलिंग हेल्थ incapacitated the Sultan by 1375-76, necessitating the delegation of royal powers to the ambition and arrogant hereditary prime minister खान-ए-जहान जूना खान। तो जब सुल्तान की जो है तबीयत ख़राब होने लगी 1375-76 में, तो क्या हो गया कि रॉयल पावर्स जो है वो सुल्तान ने किसने ले लिया, सुल्तान से जो जूना खान, खान-ए-जहान जूना खान, जो कि खान-ए-जहान के बेटे थे, जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहले दो बेटे जो फिरोज शाह तुगलक के थे प्री डिसीज्ड, जब वो जो है उनका बहुत पहले ही वो मर गए, फिरोज शाह तुगलक के दो बेटे, और बाकी के जो बेटे थे, तीसरे बेटे जो थे मोहम्मद खान, डिड नॉट पुल ऑन नाइसली विद द प्राइम मिनिस्टर, उनका तो खान-ए-जहान जूना खान से बनता ही नहीं था। इट ट्रिगर्ड ऑफ द लैटर कंस्पायर्ड to liquidate the prince but was himself killed instead। तो खान-ए-जहान जूना खान जो है वो मोहम्मद खान को मारना चाहते थे, बट फिर उन्हीं को मार दिया गया। इससे क्या हो गया, सिविल वॉर छिड़ गया राइवल क्लेमेंट्स के बीच में। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक अभी ज़िंदा ही थे, बस इनकी हेल्थ ख़राब हुई थी और लोग जो है वो लड़ रहे हैं कि कौन दूसरा सुल्तान बनेगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आखिरी सांसें 20 सितंबर 1388 को ली, और इनके बाद जो है इनएक्सपीरियंस्ड, इनकॉम्पिटेंट, प्लेजर सीकिंग इनका जो पोता था तुगलक शाह वो आ गया। सक्सेसर्स जो है फिरोज तुगलक के वो जो है नॉन एंटीट्स थे, डू नॉट डिजर्व प्लेस अमंग द सोवरेन रूलर्स ऑफ द कंट्री। तो उनके जो सक्सेसर थे फिरोज तुगलक के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो वो बिल्कुल सोवरेन रूलर्स के साथ हम उनको नहीं पढ़ सकते हैं, वो जगह ही डिज़र्व नहीं करते। और फिर नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। द वीडियो वॉज अ बिट लॉन्ग बट नेसेसरी, क्योंकि फिर वो पार्ट में करना would be a hectic thing to do. So thank you so much for watching. Thank you.